کراچی صوبہ سندھ کا ساحلی شہر اور اس کا دارل خلافہ ہے. یہ شہر پاکستان کی معاشی شہرک بھی ہے. کراچی دنیا کے چند بڑے شہروں میں سے ایک مانا جاتا ہے. سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کراچی شہر کے مرکزی حصے میں واقع ہے. سندھ مدرسۃ الاسلام کو 1 ستمبر 1885 میں خان بہادر حسن علی افندی نے قائم کیا تھا. اس سے 10 سال قبل 1875 میں سر سید احمد خان علی گڑھ میں مسلمانوں کا پہلا جدید تعلیمی ادارہ قائم کر چکے تھے. اس طرح سندھ مدرسۃ الاسلام بر صغیر میں مسلمانوں کا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بعد دوسرا اور پاکستان کا قدیم ترین تعلیمی ادارہ ہے. سندھ مدرسۃ الاسلام کا ایک عظیم کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے ایسے رہنما پیدا کیے جنہوں نے سندھ صوبے کی بمبئی سے علیحدگی اور پھر قیام پاکستان میں مرکزی کردار ادا کیا، اور ان میں بلا شبہ سر فہرست ہیں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح. قائد اعظم محمد علی جناح کی اپنی اس مادر علمی کے ساتھ 3 بڑی وابستگیاں رہی ہیں. پہلی یہ کہ انہوں نے اپنے تعلیمی کیریئر کا سب سے زیادہ عرصہ سندھ مدرسۃ الاسلام میں گزارا، جو 4.5 برسوں پر محیط تھا. انہوں نے جولائی 1887 سے لے کر جنوری 1892 تک سندھ مدرسۃ الاسلام میں تعلیم حاصل کی. ان کی دوسری بڑی وابستگی یہ تھی کہ انہوں نے سندھ مدرسۃ الاسلام کو 1943 میں اسکول سے کالج کا درجہ دیا. قائد اعظم محمد علی جناح اپنی اس مادر علمی سے کتنا پیار کرتے تھے، اس بات کا اندازہ ان کی اس تقریر سے لگایا جا سکتا ہے جو انہوں نے سندھ مدرسۃ الاسلام کو کالج کا درجہ دینے کے موقع پر منعقدہ تقریب سے کی تھی. قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا، I know every inch in the splendid grounds of this institution, and it is no wonder if I'm a bit sentimental in opening a college here, although after 55 years. Every inch of these splendid grounds where I took part in various games, I know. بانی پاکستان کی اپنی مادر علمی کے ساتھ تیسری بڑی وابستگی یہ تھی کہ انہوں نے اپنی آخری وصیت کے تحت اپنی ذاتی ملکیت کا تیسرا حصہ سندھ مدرسۃ الاسلام کے نام کر دیا. سندھ مدرسۃ الاسلام کو یونیورسٹی کا درجہ 16 فروری 2012 کو ملا. اس دن حکومت سندھ نے اس تاریخی ادارے کو یونیورسٹی کا چارٹر دیا. یہ عظیم الشان کارنامہ سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کے موجودہ وائس چانسلر ڈاکٹر محمد علی شیخ کی انتھک کوششوں کا نتیجہ ہے، جو انہوں نے 1994 سے سندھ مدرسۃ الاسلام کے پرنسپل کے عہدے کی ذمہ داری سنبھالتے ہوئے شروع کی تھی. 1994 میں جس وقت ڈاکٹر محمد علی شیخ نے اس ادارے کے پرنسپل کا عہدہ سنبھالا تو اس وقت سندھ مدرسۃ الاسلام کی حالت بہت ہی خستہ تھی. یہ ایک روایتی سرکاری اسکول کی شکل اختیار کر چکا تھا، لیکن ڈاکٹر محمد علی شیخ کی کوششوں اور کاوشوں کی بدولت بالآخر سندھ مدرسۃ الاسلام کو پہلے ملک کے ایک نمایاں تعلیمی ادارے کا تشخص حاصل ہوا اور پھر اسے یونیورسٹی کا درجہ ملنے کا خواب بھی پورا ہو گیا. It was established in 1885 as a school. Then one of his most prominent alumnus, Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah, elevated it from a school to college in 1943, and finally in 2012 it became a university. سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی میں اس وقت 5 تعلیمی شعبہ جات قائم ہیں، جو کہ شعبہ بزنس ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ سائنس، شعبہ کمپیوٹر سائنس، شعبہ میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز، شعبہ انوائرمنٹل سائنس اور شعبہ ایجوکیشن ہے. ان شعبہ جات میں انڈر گریجویٹ، گریجویٹ اور پی ایچ ڈی پروگراموں میں تعلیم دی جاتی ہے. Business Administration Department consistently endeavors to produce market leaders who would take business leadership roles in the public and private sector. Key to my transformation is that I always did something that I was a little bit afraid of, and I think that's how you grow, that's how you keep yourself moving. Department of Computer Science is offering MS Computer Science, PhD Computer Science in conjunction with the undergraduate program BS Computer Science. Sindh Madrasatul Islam University has empowered me enough that I am working as a freelancer in web development. The Allied Department has teachers who teach compulsory courses such as Maths, Islamiyat and English.
I'm an English teacher, and I think being an English teacher, one of the biggest responsibilities apart from teaching English to the students is to provide them counseling, mentoring them, and their confidence building, and which is what we do the best here. Basically, Department of Media and Communication Studies emphasizes on the study of global media and culture, media history, visual culture, screen studies, political communication, media activism, and peace journalism. I am Abdul Bari and I am the student of Department of Media and Communication Studies. We, the students of Department of Media Studies, are trained to critically analyze the ways in which media affects, reflects, or influences the world. The Department of Environmental Sciences is making our student attitudes towards the environment through arranging seminar, conferences, workshops, and celebration of important days of environment. Department of Education is equipped with modern technology. We are not only providing the best quality education pertinent to the society, but organizing seminars, workshops, and different activities for the students and researchers for the purpose of research and innovation. सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी का मौजूदा तारीखी कैंपस ब्रिटिश दौर की तामीर शुदा बहुत ही खूबसूरत इमारत में वाक़ है। इन इमारत में सबसे ज्यादा कदीमी और दीदा ज़ेब इमारत मेन बिल्डिंग है, जिसका संग बुनियाद वॉइस रॉय लॉर्ड डेफरिन ने 1887 में रखा था। ये वही इमारत है जहां कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तालीम हासिल की थी। मेन बिल्डिंग में इस वक्त शुबा मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज और शुबा एजुकेशन के साथ ऑडिटोरियम, सेनेट हॉल और दीगर सहूलियात मौजूद हैं। इसी इमारत में इंतजामिया के दफातर भी मौजूद हैं। सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी की दूसरी अहम इमारत तालपुर हाउस 1901 में कायम किया गया था। इसमें 3 शोबाजात कायम हैं, जिनमें शुबा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट साइंस, शुबा कंप्यूटर साइंस और शुबा एनवायरमेंटल साइंस शामिल हैं। इस इदारे की एक और कदीम इमारत यहाँ की लाइब्रेरी है। ये इमारत 1898 में प्रिंसिपल की रहायशगाह के तौर पर कायम की गई थी। कदीम इमारत में इस इदारे की शिया और सुन्नी मसाजिद भी शामिल हैं, जो 1890 की दिहाई में तामीर हुई थी। सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी अपने तालिब इल्मों को म्यारी तालीम और जदीद सहूलियात फराहम करने की वजह से एक मुनफरिद हैसियत रखती है, और यही हैसियत इसे मुल्क की दीगर सरकारी जामियात से मुमताज करती है। यूनिवर्सिटी में तालिब इल्मों की तालीम और तरबियत के लिए कंप्यूटर लैब्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जदीद सहूलियात मौजूद हैं। ये इदारा पाकिस्तान के उन चंद इदारों में शामिल होता है जहां जदीद तरीन कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए दाखिले से लेकर डिग्री के हुसूल तक तमाम मराहिल खुदकार तरीके से कंप्यूटर के जरिए अमल में आते हैं। सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में एक शानदार लाइब्रेरी भी मौजूद है, जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिनमें एक रिवायती और दूसरा डिजिटल हिस्सा है। लाइब्रेरी में किताबों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, जिनमें नायाब किताबें शामिल हैं। लाइब्रेरी में कई नेशनल और इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल्स भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ लाइब्रेरी में हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहत जर्नल्स के मुताले की भी सहूलत मौजूद है। यहाँ पर एक तारीखी जिना म्यूजियम भी कायम है, जिसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के तालीमी रिकॉर्ड्स और यादगारी अशिया के साथ साथ दीगर साबिक तालिबे इल्मों और इदारे के बानी हसन अली अफंदी की यादगारी अशिया महफूज की गई हैं। सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन, क्वालिटी एनहेंसमेंट सेल और डायरेक्टरेट ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स एंड प्लेसमेंट भी कायम है। ये तमाम शुबाजात अलग अलग तौर पर सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में तहकीकी अमल को तक़वियत देने और तालीमी मियार को बेहतर बनाने के साथ फैकल्टी और दीगर स्टाफ की रेगुलर तरबियत के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मुनक्किद करते हैं। इसके साथ तालिबे इल्मों की हम नसाबी सरगर्मियों को भी फरोग देते हैं। सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के पास एक जदीद तरीन टेलीविजन स्टूडियो भी मौजूद है, जहां पर तलबा और तालिबात मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रिकॉर्ड करवाते हैं। 2, 1, इस तरह वो अपनी तकनीकी सलाहियतों को परवान चढ़ाते हैं। टेलीविजन स्टूडियो के जरिए तैयार करदा प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी के वेब चैनल www.smiu.tv पर दुनिया भर में देखे जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी के कयाम के बाद मोहतरम वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली शेख की अनथक काविशों के नतीजे में SMIU FM 96.6 का संग बुनियाद दिसंबर 2013 में रखा गया। इसके एक ही साल बाद जुलाई 2014 में पैमरा की जानिब से कैंपस रेडियो को बाकायदा लाइसेंस जारी कर दिया गया।
SMIU FM की फ्रीक्वेंसी 96.6 है, जिसको यूनिवर्सिटी से 10 किलोमीटर तक के दायरे में मैन्युअली ट्यून इन किया जा सकता है, जबकि वेबसाइट www.smiu.fm पर 24 घंटे बिला तात्तुल सुना जा सकता है। जब SMIU FM 96.6 का आगाज हुआ तो नशरियात सिर्फ 3 घंटे तक महदूद थी, जो कि कुछ ही अरसे में 6 घंटे तक जा पहुंची, और अब ये दौरानिया 4 साल की मुख्तसर मुद्दत में 24 घंटे की नशरियात तक जा पहुंचा है। SMIU FM 96.6 के प्रोग्राम्स में SMIU से मुताल्लिक़ खबरों, तालीम और तफरीह पर खास तवज्जो दी जाती है। यूनिवर्सिटी में मौजूद शोबाजात की तफसील के साथ कौमी और बैनुल अक़वामी अहमियत के हामिल दिनों पर खुसूसी प्रोग्राम्स भी नशर किए जाते हैं। SMIU FM 96.6 पर इस वक्त 24 घंटे की ट्रांसमिशन में मजमूई तौर पर 10 प्रोग्राम्स नशर किए जा रहे हैं, जिनमें सरे फहरिस्त है प्रोग्राम 100 अजीम शख्सियात। इस प्रोग्राम का मकसद दुनिया के कामयाब तरीन लोगों की कहानियां सुनने वालों तक पहुंचाना है। प्रोग्राम सर्च एंड रिसर्च हर मंगल को ऑन एयर किया जाता है, जिसका मकसद है जिंदगी के हर मैदान में होने वाली रिसर्चेस और स्टडीज सामाईन तक पहुंचाना। प्रोग्राम सेहत और जिंदगी में इंसानी सेहत से जुड़े हर मामले पर बात की जाती है। एक और प्रोग्राम है स्कॉलरशिप इन फोकस। इस प्रोग्राम में हम स्टूडेंट्स, फैकल्टी और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को दुनिया के हर कोने से ऑफर की गई स्कॉलरशिप से आगाह करते हैं। एक और प्रोग्राम जो कि SMIU FM 96.6 पर इस वक्त नशर किया जा रहा है वो है हिकायतें। इस प्रोग्राम के जरिए हम सुनने वालों तक सबक आमोज कहानियाँ और वाकयात पहुँचाते हैं। और अब बात करते हैं खुसूसी वीकेंड स्पेशल प्रोग्राम्स की। हर हफ्ते को SMIU FM 96.6 पर आप सुन सकते हैं प्रोग्राम सैर पाकिस्तान की। इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको घर बैठे बैठे पूरे पाकिस्तान की सैर कराते हैं। और हर इतवार को प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे में हम आपको दुनिया की सैर कराते हैं। और साथ ही सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल लीडरशिप प्रोग्राम के जरिए UK, चाइना, मलेशिया और टर्की जाने वाले तालिबे इल्म अपनी खूबसूरत तजर्बात को सुनने वालों के साथ शेयर करते हैं। इन सब प्रोग्राम्स के अलावा रोजाना SMIU गजेट के नाम से SMIU न्यूज बुलेटिन भी नशर किया जाता है। इस बुलेटिन में तालिबे इल्मों की रहनुमाई के लिए एडमिशंस, एग्जाम्स, इवेंट्स, फेस्टिवल्स और गेस्ट लेक्चरर्स की तफसीलात शेयर की जाती हैं। SMIU गजेट उर्दू, इंग्लिश और सिंधी जबान में नशर किया जाता है। SMIU FM 96.6 के पास एक एजाज ये भी है कि बेशतर नामवर बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारों के साथ इसका इश्तराक भी है, जिनमें DW रेडियो, VOA, BAM रेडियो नेटवर्क और लॉयल बुक्स शामिल हैं। SMIU FM 96.6 कैंपस रेडियो की हैसियत से अपने आप को मनवाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब बाकायदा 24 घंटे की लगातार नशरियात यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा एजाज है। इस रेडियो के जरिए हम तुलबा को मुकम्मल प्रोफेशनल ट्रेनिंग फराहम करते हैं, ताकि जब वो फील्ड में कदम रखें तो पहले ही दिन से अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए तैयार हों। SMIU कैंपस रेडियो जदीद दौर की तमाम सहूलियात और जदीद तरीन आलात से आरास्ता है। SMIU FM 96.6 का मकसद है कि तलबा प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, रिसर्च और स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे शोबों में भी महारत हासिल करें, जिसके लिए खास मौके फराहम किए जाते हैं। और इसी तरबियत के नतीजे में तलबा खुद को मनवा कर रेडियो के लिए प्रोग्राम्स तैयार करते हैं। इस वक्त सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के सिटी कैंपस चंद तारीखी इमारत में कायम है, जो 1 सदी से जायद अरसे की तामीर शुदा हैं। यही वजह है कि सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी चाहते हुए भी ज्यादा तालिबे इल्मों को दाखिले देने से कासिर है। इस जरूरत के पेश नजर सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी अपने 2 नए कैंपसेस कायम कर रही है, जिनमें से एक मलीर कैंपस और दूसरा हॉग्स बे कैंपस है। 100 एकड़ पर मुहीत मलीर कैंपस का तामीराती काम जारी है। ये जमीन हुकूमत सिंध ने सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी को दी है, जबकि इसकी तामीर के पहले मरहले के लिए वफाकी हुकूमत ने 1 अरब 57 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। The concept of that campus is a university in a garden. So there is a lot of greenery and the campus is going to be environment friendly. This campus will definitely take quite some time and I expect that it may take about 10 years. हॉग्स बे कैंपस के लिए भी हुकूमत सिंध ने 10 एकड़ का एक प्लॉट दिया है। यहाँ पर एक बैनुल अक़वामी म्यार का इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज तामीर किया जाएगा। इन 2 कैंपसेस के अलावा सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के सिटी कैंपस के एक अहम प्लॉट, जो हाल ही में कब्जागिरों से खाली कराया गया है, इस पर भी एकेडमिक ब्लॉक तामीर किया जा रहा है।
تینوں پروجیکٹس کے مکمل ہونے کے بعد سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کے 3 کیمپسز ہوں گے جن میں 30,000 سے زائد طالب علم مختلف شعبہ جات میں بین الاقوامی معیار کی تعلیم حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ۔ اپنی تمام تر خصوصیات کے ساتھ سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی جلد بین الاقوامی معیار کی جامعہ کی حیثیت میں پاکستان کا نام روشن کرنا اپنا مقصد بنا چکی ہے۔ ہمارا خواب آسمان کی بلندیوں سے آگے جانا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی مادر علمی ہونے کے اعزاز کے ساتھ سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی پاکستان میں تعلیم عام کر کے ایک مثالی ادارہ بننا چاہتی ہے، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا یوتھ از دی نیشن بلڈر، اور اس عظیم ادارے کا بھی یہی مقصد رہا ہے، Enter to learn, go forth to serve۔